بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 5 شعبان جمعۃ المبارک کے دن اللہ سے جھگڑا کرنے والی سورت صرف ایک بار پڑھ لینا، اور یہ سورت جس گھر میں پڑھ لی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج شعبان کا پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج رب سے اپنی حاجات منوانے کا دن ہے۔ میرے بھائیوں، آج دولت سے گھر بھرنے کا دن ہے۔ آج جس نے یہ وظیفہ ایک بار پڑھ لیا نا، میرے دوستو، رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو شام ہونے سے پہلے مل جائیں گے۔ میرے بھائیوں، 5 شعبان جمعۃ المبارک کے دن یہ سورت جو اللہ سے جھگڑا کرتی ہے، اللہ سے مجادلہ کرتی ہے، اللہ سے آپ کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے، آپ کی سفارش کرتی ہے، آپ کو دنیا اور آخرت میں اکیلا نہیں چھوڑتی۔ دنیا میں بہت سے لوگ آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں، لیکن آخرت میں یہ سورت آپ کا ساتھ دے گی۔ یہ قرآن مجید کی سورت ہے، یہ رب کا کلام ہے، یہ رب کی پسندیدہ سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اور اس سورت کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو پڑھنے والے پر دنیا میں رحمتوں برکتوں کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ اس سورت کو پڑھنے والے پر آخرت آسان ہو جاتی ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والے پر ہر طرح کی مشکلات کا، پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم اس سورت کو پڑھنے والے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم اس سورت پڑھنے والے کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج 5 شعبان جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، لیکن جب 5 شعبان جمعۃ المبارک کے دن اللہ سے جھگڑا کرنے والی سورت ایک بار پڑھ لو گے نا، تو میرے بھائیوں، دنیا کی ہر چیز بن مانگے مل جائے گی۔ آپ میں سے میری وہ بہنیں، وہ بیٹیاں، وہ مائیں جو پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، جن کے گھر کے حالات خراب ہو چکے ہیں، جو ایک وقت کا کھاتے ہیں دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، آج موقع ہے، شعبان کا مہینہ آ چکا ہے۔ آج 5 شعبان جمعۃ المبارک کے دن یہ سورت ایک بار پڑھ لینا۔ گھر کا کوئی ایک فرد پڑھ لے، ماں پڑھ لے، بیٹی پڑھ لے، بھائی پڑھ لے، والد پڑھ لے، لیکن گھر کا کوئی ایک فرد پڑھ لے، آپ کے گھر کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جب رب کریم نے فرمایا کہ یہ جھگڑا کرنے والی سورت ہے، حضور کے چاچا ابن عباس فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی حدیث، ایک ایسی سورت نہ دوں جو تمہیں خوش کر دے، جو تمہاری خوشیوں کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا فرما رہے ہیں کہ یہ سورت خوشیوں کا خزانہ لاتی ہے۔ یہ سورت تنگ دستیوں سے، مایوسیوں سے، ڈپریشن سے نکال کر کامیابی کا واحد حل ہے۔ بدقسمت ہے، بدبخت ہے وہ بندہ جو آج 5 شعبان جمعۃ المبارک کے دن کو پائے اور یہ ایک سورت نہ پڑھ لے۔ میرے بھائیوں، آپ نے شعبان کے مہینے میں بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، بہت سے اعمال کیے ہوں گے، لیکن یہ 5 شعبان جمعۃ المبارک کا خاص الخاص عمل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر تکلیف کا خاتمہ ہو جائے، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، بے روزگاروں کو روزگار مل جائے، قرض والوں کو قرض کے بوجھ سے نجات مل جائے، رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے آج 5 شعبان جمعۃ المبارک کے دن یہ سورت صرف ایک بار پڑھ لینا۔ یہ ایک بار پڑھنے کی دیر ہے، میرا رب خوشیوں سے، کامیابیوں سے، ترقیوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اگر کوئی بندہ ایک سورت صرف ایک بار نہیں پڑھ سکتا تو رب کریم سے کیسے التجا کرے گا کہ میری حاجات کو پورا کیا جائے؟ میں کہتا ہوں، جو لوگ وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، جو لوگ بڑے بڑے اعمال سے فائدہ نہ اٹھا سکے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، ان سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، ان بہنوں سے، ان بیٹیوں سے گزارش ہے کہ آج یہ وظیفہ آپ نے میرے کہنے پہ پڑھنا ہے۔ آج تک آپ نے بہت سے وظائف اپنی مرضی سے کیے، لیکن آج یہ ایک سورت میری مرضی سے پڑھنی ہے۔ خدا کی قسم، پورا سال کروڑوں میں کھیلیں گے۔ رب کعبہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ آج 5 شعبان جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ میرے بھائیوں، شعبان کا مہینہ بھی بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، تو پھر کیوں نہ شعبان کے مہینے میں اپنی حاجات کو پورا کر لیا جائے۔ آج ایک سورت پڑھ لینا۔ یہ سورت پڑھنے والا جتنا بھی گناہ گار ہے، فقیر بھی ہے، تنگ دست بھی ہے، تو میرا رب بادشاہی عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس سورت میں دنیا جہاں کی خوشیاں موجود ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں موجود ہیں۔ یہ سورت پڑھنے والا طاقتور دشمن سے نجات پا لیتا ہے۔ یہ سورت پڑھنے والا رب کی مدد پا لیتا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، یہ سورت واحد وہ عمل ہے
जो आपकी सिफारिश रब के सामने करेगी। बदबख्त है, बदनसीब है वो बंदा जो 5 शुबान जुम्मतुल मुबारक के दिन ये वजीफा नहीं पढ़ेगा। मेरे भाइयों, आप दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, आपका ताल्लुक दुनिया के किसी भी कोने से है, जब आपके मुल्क में 5 शबान का दिन आ जाए तो आपने अल्लाह से झगड़ा करने वाली ये एक सूरत पढ़ लेनी है। मेरे अजीज दोस्तों, इस सूरत के कमालात, इस सूरत के मोजज़ात बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर कोई रब के मोजज़ात को, रब की करामात को खुली आंखों से देखना चाहता है तो 1 मिनट निकाल के ये वजीफा पढ़ के देखिएगा। इस सूरत को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आपने इस सूरत को बहुत बार पढ़ा भी होगा, लेकिन इस सूरत को कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये हर कोई नहीं जानता और ना ही कोई राज बताने की कोशिश करता है। क्योंकि मेरे भाइयों, मौजूदा वक्त में हर कोई एक दूसरे से हसद करता है। कोई आपको अपने से ऊपर जाता देख नहीं सकता। हर कोई चाहता है कि आप उससे नीचे रहें, आप उससे कम कमाएं। मेरे भाइयों, लेकिन जब राज़िक रब है, रिस्क भी रब की तरफ से है, कामयाबी भी रब की तरफ से है, फिर हम कौन होते हैं जो आपका रिस्क रोके। मेरे दोस्तों, शबान का पहला जुमा है, जुमे का दिन, कबूलियत का दिन, जुमे का दिन, बख्शिश का दिन, जुमे का दिन, रब से मांगने का दिन। जुमे का दिन हर नेकी का बदला 10 गुना ज्यादा दिया जाता है। जुमे के दिन मांगने वाले को कभी खाली हाथ लुटाया नहीं जाता। और जब जुम्मतुल मुबारक शबान के महीने में आ जाए, रब के महबूब के महीने में आ जाए, तो अल्लाह की जात आपकी हर हाजत को फौरन पूरा कर देती है। और अल्लाह से झगड़ा करने वाली ये सूरत एक बार पढ़ने की देर है। मेरे भाइयों, कई सालों से रुकी हुई दुआएं, कई सालों से रुके हुए काम, ये एक सूरत एक बार पढ़ने से हर हाजत, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। मेरे भाइयों, ये मेरे रब के कमालात हैं। वो जात जब देने पे आती है ना तो छप्पड़ फाड़ के अता फरमा देती है। हमें मांगने का तरीका नहीं आता। दोस्तों, भाइयों बहनों, अभी भी मौका है। जो लोग रजब के महीने को लापरवाही में गुजार चुके हैं, आज 5 शबान जुम्मतुल मुबारक के दिन दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के आज ये वजीफा पढ़ लो। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए अमल की तरफ चलते हैं। फायदा मेरा बिल्कुल नहीं, सूरत आपने पढ़नी है, फायदा आपको होगा, लेकिन आज ये मौका ज़ाया किया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल इस्लामिक वज़ाइफ पीडिया को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको हमारे इस चैनल पर रोज सुनने को मिलते रहेंगे। वजीफा बताने से पहले आज 5 शुबान जुम्मतुल मुबारक की खुसूसी दुआ करवाऊंगा। मैं दुआ करता हूँ, आपने आमीन जरूर कहना है। ऐ मेरे मालिक मौला, आज 5 शुबान जुम्मतुल मुबारक का दिन है। तू रहमान है, तू रहीम है, तुझे तेरी शानी करीमी का वास्ता, तुझे तेरे रब होने का वास्ता। आज हम सब की नेक जायज हाजात को पूरा फरमा दे। जो कोई बेरोजगार है, रोजगार अता फरमा दे। बे औलादों को औलाद अता फरमा दे। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत पैदा फरमा दे। कर्ज से निजात अदा फरमा दे। मौला, तू हर शे पे कादिर है, तू जब देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है। आज जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। तेरे दर पे सवाली बनकर बैठा हूँ, आज नजरे करम फरमा। तू जब चाहे जो चाहे कर सकता है। आज इस सूरत की फजीलतों बरकत से दुनिया और आखिरत में आसानियां पैदा फरमा दे, आमीन। मेरे भाइयों, आइए अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले याद रखिएगा, आज 5 शुबान जुम्मतुल मुबारक का दिन है। पूरा दिन, पूरी रात मौजूद है। जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। करना क्या है, जुम्मतुल मुबारक के दिन बावजू मुसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या फिर नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। इससे पहले तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि अब तक आपने वीडियो स्किप करके देखी हो, काट काट कर देखी हो, लेकिन अब अमल का तरीका कर बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत अहम है। वजीफा बहुत छोटा है। ये सूरत एक बार पढ़नी है। ये सूरत रब से सिफारिश करेगी आपकी तमाम हाजात के लिए, तमाम मकासद के लिए। और इस सूरत की सिफारिश रब ने आज तक नहीं डाली। तो आज वक्त है, आज मौका है। आज जुम्मतुल मुबारक के दिन रब करीम से जो भी लेना चाहते हो मांग लो। खजाने लूटने का दिन है। सबसे पहले
एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते ही साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। आपको जो भी चाहिए मांग लेना इंशाअल्लाह। इस सूरत की सबसे बड़ी ताकत और फजीलत यह है कि इस सूरत को एक बार पढ़ने से आपकी 30 हाजात पूरी होती हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आप 30 हाजात की नियत करके बैठे, 30 की 30 पूरी होंगी इंशाअल्लाह। 30 मकसद को जहन में रख के बैठे, आपके 30 के 30 मकसद पूरे होंगे। मेरे भाइयों, ये सूरत एक बार पढ़नी है, नियत लाजमी करना, क्योंकि आज जो भी मांगोगे मिलकर रहेगा। अपने तमाम मकासद की एक लंबी लिस्ट बना के भी बैठोगे ना तो हर मकसद पूरा होगा। नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के बाकायदा वजीफे का आगाज करना है। और पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा, एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत अहम है, कोई फजूल बात नहीं। आप अमल का तरीकाकार सुनिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते साथ ही पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब करीम के एक नाम का वजीफा है, जो रब की असमत को बयान करता है, जो रब की बड़ाई को बयान करता है, जो रब की तारीफ करता है। आपने सुबहान अल्लाह को पढ़ना है। 5 शुबान जुम्मे का दिन का खास अमल है और ये सिर्फ आज जुम्मतुल मुबारक के दिन पढ़ सकते हैं। आज 5 शुबान जुम्मतुल मुबारक का दिन निकल गया ना तो ये मौका बार बार नहीं आएगा, फिर ना कहना कि बताया नहीं। ये सूरत रब से झगड़ा करने वाली है। रब का कलाम हो, रब से झगड़ा करे, आपके लिए करे। कितना अजीम वजीफा बता रहा हूँ। पहले नंबर पर आपने सुबहान अल्लाह को पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह को आपने हाथ की उंगलियों पर 11 बार पढ़ना है। जैसे ही 11 बार सुबहान अल्लाह पढ़ने में मेरा नहीं ख्याल कि 20 सेकंड से ज्यादा का वक्त लगेगा। टोटल वजीफा 1 मिनट का है। अगर 1 मिनट आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए आपकी तकदीर को बदल कर रख दे तो ये 1 मिनट निकालना आप पे फर्ज है। मेरे भाइयों, ये 1 मिनट आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल सकता है, दुनिया और आखिरत को आसान बना सकता है, करोड़ों का मालिक बना सकता है। सुबहान अल्लाह को कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। सुबहान अल्लाह 1 बार हो गया, सुबहान अल्लाह 2 बार हो गया, सुबहान अल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आपने तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ डूबकर इस मोहब्बत से पढ़ना है कि मैं रब के महीने में रब के सामने भिखारी बन के बैठा हूँ, मंगता बन के बैठा हूँ। मौला करीम, आज 5 शुबान जुम्मतुल मुबारक का दिन है। आज तुझे तेरी अजमत का वास्ता, आज हम सब की हर हाजत को पूरा फरमा। आपने सुबहान अल्लाह को 11 बार पढ़ते दौरान दिल ही दिल में अपनी हाजत को, अपने मकसद को जरूर रखना है, क्योंकि सुबहान अल्लाह पढ़ने से रब राजी होता है। जब रब की कोई अजमत बयान करता है तो मेरा रब उस बंदे से खुश हो जाता है, फिर उस बंदे के मुंह से निकली हर हाजात को पूरा कर देता है। आपने सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह को हाथ की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। मेरे भाइयों, सुबहान अल्लाह को बताए गए तरीके से पढ़ते ही फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा गौर और तवज्जो से सुनिएगा। ये वजीफा रब करीम के एक जलाली इस्म आजम का वजीफा है। आपने रब करीम को इस नाम से बहुत बार पुकारा होगा और जिसने जब भी पुकारा रब की अजमत जलाल में आती है और हर हाजत को पूरा कर देती है। मेरे भाइयों, ये वज़ाइफ बने बनाए नहीं है, ये अमाल जो आप तक पहुंचा रहा हूं इनका वजूद है। इनको बेहद लोगों ने आजमाया है, इनको बेहद लोगों ने अपनी हाजात को पूरा करवाया है। खुदारा लापरवाही मत कीजिएगा, आज मौका है। ये 1 मिनट का वजीफा है। आपने दूसरे नंबर पर या जल जलाली वल इकराम को पढ़ना है। ये रब काबा का जलाली इस्म आजम है और जब कोई बंदा जमीन पे बैठ कर रब को या जल जलाली वल इकराम से पुकारता है तो मेरे रब की अजमत, मेरे रब की रहमत, मेरे रब की नेमतें जलाल में आ जाती हैं। और जिस बंदे के लिए रब की रहमत जलाल में आती है वो क्या, इसके घर का बच्चा भी अरबपति बन जाता है, इसके बिगड़े काम समझ जाते हैं। मैंने पहले बताया कि आज 5 शुबान जुम्मतुल मुबारक का दिन है। ये वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना। पहले नंबर पर सुबहान अल्लाह को पढ़ना है,
दूसरे नंबर पर या ज़ल जलाली वल इकराम को पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या ज़ल जलाली वल इकराम को हाथ की उंगलियों पर 21 बार यानी 21 बार पढ़ना है, यानी 21 टाइम पढ़ना है। 21 बार या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ते दौरान आप रब करीम से जो भी मांग सकते हो मांगिएगा, क्योंकि आज आप जो मांगते चले जाएंगे आपको मिलकर रहेगा। आज आप खजाने भी मांगोगे तो आज खजाने लूटने का दिन है। आज कोई बेघर है, किराए के मकान पर रहता है, जाती घर के लिए पढ़ लो। बेरोजगार है, रोजगार के लिए पढ़ लो। बे औलाद है, औलाद के लिए पढ़ लो। जो बेटे के ख्वाहिशमंद है, नरीना औलाद बेटे के लिए भी पढ़ोगे तो रब करीम बेटा भी देगा। जुम्मे के दिन तो मांगने वाले की हर दुआ कबूल होती है। और जब जुम्मतुल मुबारक शुबान के महीने में आ जाए, कबूलियत की घड़ियां हो और मौका भी हो, 21 बार या ज़ल जलाली वल इकराम हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। बेहतर है अगर आप 21 बार या ज़ल जलाली वल इकराम को सजदे की हालत में पढ़ते हैं। सजदे की हालत में इंसान रब करीम के करीब तरीन होता है, फिर क्यों ना रब के करीब जाके या ज़ल जलाली वल इकराम को पढ़ा जाए। तो इंशाअल्लाह सजदे से सर उठाने से पहले या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ने वाले पर रब की रहमतों बरकतों का नज़ूल हो जाएगा। आप पर खजानों के मुंह खुल जाएंगे, आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे, हर परेशानी गायब से खत्म हो जाएगी। आप जिस तरफ कदम बढ़ाओगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। एक ऐसी जिंदगी का आगाज हो जाएगा कि जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा। आपने सिर्फ और सिर्फ 21 बार या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या ज़ल जलाली वल इकराम एक बार हो गया, या ज़ल जलाली वल इकराम 2 बार हो गया, या ज़ल जलाली वल इकराम 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम को 21 बार पढ़ना है। और फौरी तौर पर तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो अल्लाह से झगड़ा करने वाली सूरत है। एक बार पढ़ना है। ये सूरत अल्लाह से लड़ जाती है, आपको कब्र तक आपके साथ नहीं छोड़ेगी। ये 29वें पारे की पहली सूरत है। इस सूरत को पढ़ने से 30 हाजात पूरी होती हैं, 30 मकसद में कामयाबी यकीनी होती है, 30 ख्वाहिशात पूरी होती हैं। मेरे भाइयों, आपने सूरा मुल्क पढ़नी है। सूरा मुल्क को एक बार पढ़ना है, किसी भी वक्त पढ़ सकते हो, लेकिन ये अमल मत छोड़ना। ये 5 शुबान जुम्मे का दिन का बहुत ही खास अमल है। सूरा मुल्क कब्र से निजात, गुनाहों से बख्शिश, कब्र के अमाल जब हिसाब किताब होता है, जब मरने के बाद बंदा रब के हजूर पेश होता है, तो ये सूरत आपके साथ खड़ी हो जाती है, आपके रब से सिफारिश करती है कि मौला करीम ये गुनाहगार है, ये सियाकार है, इसे जहन्नम में डालने से पहले मेरी सिफारिश को कबूल फरमाइए। इसने 5 शबान जुम्मे के दिन एक बार सूरा मुल्क पढ़ी थी, आपके कलाम को पढ़ा था, तेरी सूरत पढ़ी थी। इसे एक बार सूरा मुल्क पढ़ने की बदौलत आज जहन्नम से निजात अता फरमा दे। जब जहन्नम का फैसला हो जाएगा, गुनाहगारों को जहन्नम में डाला जाएगा, दुनिया और आखिरत का फैसला कब्र में हो रहा होगा, ये सूरत आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी और सिफारिश कर कर आपको जन्नत में ले जाएगी। दोस्तों, भाइयों बहनों, इस सूरत की फजीलतों बरकत बयान करना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना कहूंगा कि इस सूरत को एक बार पढ़ना है। इसकी 30 आयतें हैं, 30 हाजात पूरी होंगी। ये वजीफा बहुत आसान है, बहुत मुजरब है। ये सूरत आज तक जिसको बताई अल्लाह पाक ने इसकी जिंदगी से गुर्बत को खत्म कर दिया। मेरे भाइयों, ये वजीफा आज मैंने खुद भी पढ़ना है, क्योंकि मैं भी दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहता हूँ, मैं भी जन्नत का हकदार बनना चाहता हूँ। ये सूरत पढ़ने से दुनिया में मेरी 30 हाजात पूरी हो जाए, 30 मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाए, और मरने के बाद रब करीम आखिरत में मुझे जन्नत से नवाज दे। मेरे भाइयों, आज ये वजीफा जो छोड़ेगा बदकिस्मत है, बदबख्त है वो बंदा जो आज एक बार ये सूरा मुल्क नहीं पढ़ सकता। दोस्तों, दुनिया में 30 हाजात में कामयाबी की गारंटी मिल रही है और आखिरत में जहन्नम की आग से बचाने की गारंटी मिल रही है। दुनिया में आने का मकसद क्या है कि दुनिया में भी हम ऐशो इशरत, हमारी हाजात, हमारे मकसद पूरे हों और मरने के बाद हमें जहन्नम से निजात मिल जाए। तो आज दुनिया में भी कामयाबी की गारंटी है, आखिरत में भी कामयाबी की गारंटी है। ये सूरत आपके लिए अल्लाह से लड़ जाएगी। आज जुम्मतुल मुबारक के दिन सिर्फ एक बार
पढ़ लो। आज मौका निकल गया तो पूरे साल बाद मौका मिलेगा, अगला साल नसीब होगा। आज कबूलियत की घड़ियां गुजर गई, आज 5 शुबान जुम्मे का वजीफा गुजर गया, ये मौका पूरे साल बाद मिलेगा। पछताने से बेहतर है जो सूरत गारंटी दे रही है कि दुनिया में भी 30 हाजात पूरी, मरने के बाद जहन्नम की आग से बचाने की गारंटी। इससे बढ़कर और क्या चाहते हो मेरे भाइयों। वजीफा मुकम्मल हो चुका है। पहले नंबर पर सुबहान अल्लाह, दूसरे नंबर पर या ज़ल जलाली वल इकराम और तीसरे नंबर पर सूरा मुल्क को एक बार पढ़ना है, बताए गए तरीके से पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक चीज जैसे बताई है, जो भी बताई है वैसे पढ़िएगा। जल्दबाजी में वीडियो स्किप करके देखी, अमल का कोई हिस्सा आपसे छूट गया तो फिर ना कहना कि दुनिया और आखिरत तबाह हो गई। मैंने गारंटी इस बात की दी है कि आपने बताए गए तरीके से वजीफा पढ़ना है, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। और आज इस मौके को जाया मत करना, वरना पूरा साल पछताना पड़ेगा। तवज्जो कीजिएगा, सूरा मुल्क पढ़ते वक्त आपने अपनी दोनों जानों पे बैठ के, जिस तरह नमाज में अत्तहियात में बंदा बैठता है, ऐसे बैठकर आपने सूरा मुल्क को एक बार पढ़ना है। वजीफा मुकम्मल हो चुका। आखिर में दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा, जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अमल मुकम्मल हो चुका। आज जुम्मत मुबारक का दिन है। 21 बार दुरूद पाक पढ़ के कोई सा भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। 21 बार दुरूद पाक पढ़ के आपने कमेंट सेक्शन में अपना नाम के साथ लिख देना है। इंशाल्लाह जो बंदा 21 बार दुरूद पाक पढ़ के अपने नाम के साथ कमेंट करेगा वो आज जुम्मे की खास दुआ में शामिल हो जाएगा, जो करोड़ों दुरूद पाक इकट्ठा करके नबी करीम की बारगाह में पेश किया जाएगा और इससे मांगी गई हर दुआ कबूल हो जाएगी। खुदारा इस बार दुरूद पाक पढ़ के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वजीफा मुकम्मल होते ही दोनों हाथ उठा के रब करीम से सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कीजिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात गुनाहों की वजह से ना वजीफे कबूल होते हैं ना दुआएं कबूल होती हैं। सच्ची तौबा कबूल होते ही अब जिद करके मांगिएगा। आप रब करीम से रो रो के मांगिएगा। पहली शुबान का जुम्मा है, रब के महबूब का महीना है। आज ना मांगोगे तो कब मांगोगे। 1 से 2 मिनट का वजीफा बताया है, ये 2 मिनट की दूरी पर आपकी कामयाबी है। बदकिस्मत है वो बंदा जो आज लापरवाही करेगा। मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, आज 5 शुबान जुम्मत मुबारक के दिन ये वजीफा एक बार मेरे बताए गए तरीके से पढ़िएगा। खुदा की कसम रब करीम ने चाहा तो आज जुम्मत मुबारक के दिन पूरे साल के रिस्क और दौलत से मालामाल हो जाओगे इंशाअल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है और जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन किराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़ के की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मिसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मिसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन किराम, अपने रिज्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है और बेशक वही दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।